एचएम क्लाज के फसल प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर और नारियल फोड़कर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। सैकड़ों की संख्या में किसान फसल प्रदर्शनी देखने पहुंचे। बता दें कि बिहार व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसानों ने किया सिर्फ फसल प्रदर्शनी देखने के बाद किसानों के साथ कंपनी के वरिष्ठ जनों ने की गोष्ठी, उनके सवालों का दिया जवाब। साथ ही किसानों के सवालों पर की गई विस्तृत चर्चा और दी गई जानकारी। मुख्य अतिथि ने बोलते हुए कहा, हिंदुस्तान में ये जो आपकी सीड्स कंपनी है, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं आपकी भविष्य की, वो कैसे हैं, क्या हैं? Yes, thank you very much. I'm happy to be in India, so I started very recently. Our company is specialized only in breeding, selling, distributing, and improving seeds. So this is our main activity, and I think, and we all hope that by doing our job correctly, we also make life of our farmers and their jobs easy. That's our main goal, and that's what we try to excel in. सर, अभी कोरोना का समय निकला है, उसमें किसानों के लिए तमाम दिक्कतें, परेशानियां थी। आपकी कंपनी उसमें किस तरह से किसानों के लिए सहयोग की भूमिका में रही है? So our company has many in the world, many countries. It's a big company. Introduced very quickly all the measures, official ones imposed by governments, but also internal measures to protect our employees. Of course, coronavirus pandemic was a tragedy for many people, many countries. Some of them we could protect, and what we still do is that we help our employees to be aware of the risks and to protect themselves and the colleagues wherever they are, wherever they travel, wherever they work. So this is what we try to do, trying to help us all, not only employees but also the communities where we operate. ये वाराणसी है, यहाँ से प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री आते हैं। उनका एक प्रोग्राम अभी बीते दिनों में हुआ है, मिलेट्स को, मोटे अनाजों को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपकी कंपनी उस दिशा में भी सोचती है? So excuse me, so I'm not really aware of all the details of this scheme, of this action. So I will speak very generally. What we do, we promote vegetables. So we do only vegetable seeds. We have our divisions that are specialized into field crops. And I told you we are a unique company because we specialize in breeding of vegetables, only vegetables. So we promote vegetables because we think it's healthy, because we think it's bringing good food and value for all the consumers. That's what we are good at. And honestly, at this governmental scheme, I can only say if any government can help people, it's good to help people. Now the details I don't know, so I cannot make any opinion on that. आपकी कंपनी 250 साल पुरानी, कैसे इतना लंबा इतिहास, कैसे आपकी कंपनी लगातार लिखते चले आ रही है? Well, first of all, yes, we are proud to have this long history. It's true. Now, having done all those years by many generations, by many companies, the company grew and we are number one seed company, vegetable seed company in the world. This is not given. This you have to fight every day. You have to improve every day to maintain this position. So I still say that yes, we have a long history, but we still need every day to deserve this position and to be up to the level of the history that we went through. Thank you. राहुल जी, भी जीएम साहब से बात हो रही थी, उन्होंने चीज़ों को कैसे देखते हैं, तमाम दिक्कतें किसानों को रहती हैं। हिंदुस्तान चूँकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे में यह सीड्स कंपनी, कहा जाता है कि विदेशी कंपनियों के सीड्स महंगे होते हैं, तो क्या ये किसानों को वाकई लाभ की स्थिति में लाती है? जी हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी बीज होता है, क्योंकि बीज जो होता है वो सबसे पहली लागत होती है किसान की, जो खेती करता है पहली लागत बीज की होती है। वही लागत अगर सही नहीं निकली तो उसका पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए हम कंपनी जो रिसर्च कंपनी है, जो वेजिटेबल कंपनी है, इनका एक दायित्व बनता है कि ये अच्छे से अच्छा सीड बनाए और किसान को दे, बट देने के पहले इसको टेस्ट करें। हम हमारी जो जितनी भी किस्में वैरायटी यहाँ पे लाते हैं उसको करीबन 7 से 8 साल इंडिया के हर कोने में, ऐसे हमारे ये वाराणसी ट्रायल स्टेशन पे आज आप लोग हैं, वैसे 10 ट्रायल स्टेशन है, वहाँ पे इनको टेस्ट करते हैं, उसका डेटा लेते हैं और उसके बाद ही इसको हम किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा दायित्व इतना ही इम्पोर्टेंट है जो जितना कि हम किसानों के लिए करना चाहते हैं, और इसमें यही रहेगा कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। कि हम जब वैरायटी बनाते हैं तो किसान से सुनते हैं कि आपकी क्या दिक्कतें आ रही हैं, और उन दिक्कतों को अपनी वैरायटी में अच्छे तरीके से डाल के हम लोग उसको किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसलिए 7 साल का समय, थोड़ा लागत ज़्यादा आ जाता है, थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है, बट ये बेहतर सीड होता है। संजय जी, आज जो है यहाँ पे किसानों को इकट्ठा करके ट्रायल स्टेशन पे दिखाया गया, कैसे दिखते हैं धरातल पे जहाँ पे किसान खेती करता है और ट्रायल स्टेशन से अलग अलग हैं? सबसे पहले मैं आज प्रक्षेत्र दिवस के प्रथम दिन प्रखर पूर्वांचल की तरफ से आप दोनों लोग आए हुए हैं। मैं आप दोनों लोगों को अपने पूरे टीम की तरफ से, अपने कंपनी की तरफ से सहृदय धन्यवाद देता हूं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का भी जवाब है मेरे पास। ये जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि ये 150 साल पुरानी कंपनी है और देश के विश्व के 120 देशों में ये लगातार काम करती है। और जो भी हमारे कंपनी का एक्सपेंस होता है, जो भी हम लोग एक इनकम करते हैं, उसका 15% हम लोग R&D में खर्च करते हैं। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जिस कंपनी का, वो भी वेजिटेबल सीड कंपनी में, जिस कंपनी का खुद का R&D नहीं होता है, उनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता है। हमारे कंपनी का आपको बता दूं कि भारत के 10 लोकेशन में ट्रायल स्टेशन है, 3 R&D सेंटर है, और हर जगह हम लोगों डिफरेंट लोकेशन में किसानों के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से उस वैरायटी को हम लोग लगाते हैं, और लगाने के बाद उसको जब फाइनल कंक्लूजन पहुंचते हैं तो फिर हम लोग उस वैरायटी को आगे लॉन्च करते हैं। खेती जो किसान खेत पे कर रहा है और यहाँ अंतर होता है दोनों के प्रोडक्शन। यस, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो हमारे यहाँ फार्म पे किया जाता है, वो फार्म पे फर्टिलाइजर डोज वगैरह का थोड़ा सा जरूर डिफरेंस रहता है। फार्मर लार्ज स्केल में करता है। हमारे यहाँ सपोज दैट यहाँ पे 3 एकड़ का 4 एकड़ का फार्म है, वहाँ पे फार्मर के यहाँ ऑलरेडी बड़े स्केल पे होता है। उनका थोड़ा केयरिंग स्टेज थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, फर्टिलाइजर डोज अलग होता है, और वहाँ पे थोड़ा पेस्टिसाइड वगैरह का यूज ठीक ढंग से नहीं होता है, तो थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है। बट अगर अच्छी वैरायटी है अरुण जी, तो मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि अगर प्रजाति अच्छी है, वैरायटी अच्छी है, कंपनी अच्छा है, तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन अच्छा होगा और किसान लाभान्वित होगा। तमाम कॉर्पोरेट्स के उत्तरदायित्व समाज के प्रति भी है, आपकी कंपनी भी इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। यस, 100% हम लोग उस कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी पीछे कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कोविड था। कोविड में आप यकीन करिए लगातार 2 महीने लगातार इस ट्रायल स्टेशन से, ये ट्रायल स्टेशन ऑफिसर हमारे साथ ब्रिजेश जी हैं, मुझे पता है कि हम लोग निःशुल्क बिना पैसे का सारे गरीबों को इकट्ठा करके पूरे सब्जी का हम लोगों ने वितरण किया। और एक हमारे CSR फंडिंग होता है, CSR फंडिंग के थ्रू भी ये नज़दीक में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के प्रधानाध्यापक से पूछा गया कि आपको क्या क्या चाहिए। 1.5 लाख का हम लोग पूरा इन्वर्टर, सारे बैटरी और सारे जो भी RO सारे चीज़ को हम लोगों ने उपलब्ध कराया। निश्चित रूप से सामाजिक तौर पे भी मेरी कंपनी सामाजिकता को सोचते हुए किसानों को मदद करती है। दुर्गेश जी, किसान इस देश की आत्मा है और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि किसानों को लाभ मिले आपकी कंपनी की भूमिका। सर देखिए, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आज 200 से अधिक किसानों ने भ्रमण किया, हमारे जो यूपी और बिहार से आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने करीब 10 अलग अलग स्पीसीज की 32 वैरायटियों का प्रदर्शन किया है। उसमें से ज़्यादातर वैरायटियाँ हमारी किसानों द्वारा पसंद की गई हैं, और सारी वैरायटियाँ बीमारी के प्रति रेजिस्टेंट हैं, और 100% उसमें हार्वेस्ट इंडेक्स है। तो इस स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर वैरायटियाँ हमारी किसानों के खेत में जाती हैं तो उनका इनकम बढ़ेगा, लाभान्वित होंगे। जैसा कि मोदी जी का मिशन है कि किसानों की आय डबल हो, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छी प्रजातियों के किसानों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं।
जीएम भारत हमारे साथ थे। इनका साफ कहना है कि यह कंपनी पिछले 250 सालों से जो इतिहास लिखते चले आ रही है उसमें किसानों का बड़ा योगदान है। किसानों के लिए यह कंपनी लगातार उस बीजों का उत्पादन करती रही है जो उनके लाभ में सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ की सरकार भी यह चाहती है कि किसानों के लाभांश को लगातार बढ़ाया जाए। ऐसे में ऐसे सीड्स की ज़रूरत है जो उन्हें लाभांश में तब्दील कर सके। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।